جانکاری کا ایک انصاف یہ ہے. تو پھر ہم لوگ سب مل کے فیصلے پہ آئے کہ تمام شہر کے تمام لوگ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے، مطلب ڈاکٹر ہو، تاجر ہو، وکیل ہو، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے رائے مشورہ کے بعد ہم جلوس کی شکل میں جائیں. کہاں سے جائیں، کیسے جائیں، کیا نعرہ لگاتے ہوئے جائیں، یہ تمام رائٹوں کے مسلمان بھائیوں سے رائے مشورہ کے بعد ہم نکلیں گے. بلکہ آج کا دن ہم لوگ رائے مشورے کے لیے ہم لوگ آج اکٹھا ہوئے. ہم اعلان کریں اور مسجد میں اعلان کریں. ہماری تقسیم بنتی ہے کہ مقصود ہوئی ہے، ہماری کیا بات ہے پتہ نہیں. ہمارے لوگ اس میں کئی تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے میرے کو، کیوں جتنے لوگ آنا چاہیے کبھی یہ کچھ بھی کم پڑھنا چاہیے جو صحیح، لیکن آئے کیوں ایسے جو مسئلے ہیں، گمبھیر مسئلے ہیں جو بھی ہمارے لوگوں کے ماتھے پہ بل لے جا رہے ہیں، تکلیف نہیں ہو رہے. یہ قوم کا مسئلہ ہے، قوم کی جو شریعت کا مسئلہ ہے، شریعت میں تبدیلی ہو رہی ہے، کیوں نہیں آ رہے لوگوں کو انٹرسٹ کیوں نہیں ہے؟ پھر تکلیف ہو جائے گی اپنی ذات سے. ہم لوگ یہ نہیں دیے کہ دعوت ہر ایک آدمی کو الگ الگ مسجدوں میں اعلان کریں گے اس میں کوئی پارٹی کرنی ہے، پارٹی کرنی ہے، پارٹی کرنی ہے، پارٹی ایک طرف گھڑ میں چل رہے. ہمارے پارٹی کے نائب کے بعد کے اختلاف پر گھاڑ میں چل رہے. یہ مسئلہ قوم کا ہے. جب قوم کا مسئلہ ایک بچے میں آواز اٹھائے تو ہم لوگ جا کے حاضر ہونا ہے، سننا ہے، ساتھ دینا ہے. تو یہ فرید خان کا نہیں ہے، نہ بشیر کا ہے، نہ کسی اور کا ہے، پورا قوم کا ملت کا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کا معاملہ ہے. ہم لوگ برابر انتظار کرنا ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. تو بن چکا ہے، غصے کا اظہار کرنا ہے، غصے کا مظاہرہ کرنا ہے، غصہ بتانا ہے. ہم اس سے ناراض ہے مسلمان. تمہاری بات کی ملکیت کی ہے کہ ذریعے سے تبدیل نہیں کرتا. غریب مسلمانوں کو فائدہ ہوگا تو کس طرح کیوں بھائی غریب مسلمانوں کو فائدہ ہوگا تو مسلمانوں سے رائے مشورہ کرو، رائے مشورہ کرو. مسلمانوں کو کیا کرے تو مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. غریب مسلمانوں سے رائے ہو تو ایسے بنا دیتے غریب مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے. یہ طلاق دیتے بنا کرے مسلمانوں کو فائدہ ہے. بنائیں گے مسلمانوں کو فائدہ ہے. یہ وقت میں لاتے ہیں مسلمانوں کو فائدہ. کون بولے کسی سے رائے مشورہ کرے مسلمانوں سے بھائی یہ لانے سے یہ قانون لانے سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. اس سے مجھے تم کر دے زبردست ظلم ہے، مسلمانوں کو ظلم ہے. تو یہ سب اس طرح سے ہمارے پر ظلم پہ ظلم ڈال رہے ہیں. ہم قانون پہلے یہ کیا ہے کی حالت ہے. ہم اتنا تک طے کیے ہیں مضمون آج کے دن سبھی طبقے سے مسلمان بیپاری ہر طبقے کے یہاں موجود ہوں گے. جس دن بھی ہم لوگ کا جو جلوس نکلے گا اس دن سبھی کاروبار بند کر کے ایک دن کے لیے آدھے دن کے لیے بند کر کے سبھی رائٹوں کے سبھی لوگ وہ جو بھی لوگ رستے کریں گے غصے کا اظہار کریں گے، مظاہرہ کریں گے، ناراضگی ظاہر کریں گے. تو یہ بہت تکلیف ہوتی ہے. لوگ آتے ہی دیکھو ہم یہاں پہ کتنے وکلا ہے، کتنے تاجر ہے، کتنے ڈاکٹر ہے، کتنے سیاستدان ہیں. یہ میں اللہ کے وعدہ کر رہے میڈیا کے ذریعے ہو کہ آپ زبانی ہو. ہر مسلمان کو پہنچ رہا ہے یہ کسی کی ایک کی نہیں ہے، پارٹی کی نہیں ہے، یہ کوئی پارٹی کا معاملہ نہیں ہے. یا نہیں وہ ایسے بولو نہ میرا ہے نہ یہاں بیٹھے کوئی پاکستان کر رہا ہے نہ کسی کا ہے. سبھی مسلمان کا معاملہ ہے تو خود آنا چاہیے. جب یہ بات یہاں پہ مشورے کی یہ بات بلائیں گے تو خود آنا چاہیے. بہت تکلیف ہوتی ہے اللہ کے واسطے. جو بھی آپ مشورہ جو بھی جتنے بھی موجود ہے آپ لوگ سبھی لوگ زبانی سب کو بتائیے کہ یہ مشورے میں طے ہوا. سب لوگ جس دن بھی جو تاریخ اور دن مقرر ہوتا ہے اس دن سبھی لوگ حاضر ہو اپنے اپنے تاجر تجارت کو بند کر دیں آدھا دن تک. اور کیا کریں گے کس طرح سے
कब रस्ता निकालेंगे, कहाँ पे जाएंगे, कहाँ में मेरे को सुनने में आया पुलिस डिपार्टमेंट वाले डीसी नहीं आता, हम टीपू सुल्तान जा रहे थे, अगर हम एहतजाज लेते बैठे डीसी एसपी नहीं आता, कोई 5,000 आदमी डीसी ऑफिस आगे हो, इसके लिए वोट करना है, दबाव डालना है, तो इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों के हजारों तादाद वोट ले आने लगी, तो थोड़े देर देश के आने के लिए क्या हल है, उसको लाने की कोशिश करना, इसका प्लान बना रहा है। अभी तो हम लोग बैठे रास्ता किस तरह से जाए, कब जाए, कौन सी तारीख को करेंगे, कौन से दिन में करना है, ये सब आप तय करना है। गैर जरूरी हमारे भाषण बयान अल्लाह के वास्ते पर जिस मकसद के लिए हम राय देना है, थोड़ी सी राय अच्छी राय, थोड़ी सी बात यहाँ बैठ के बयान करना मुझे नहीं है, मतलब अच्छी राय दो, दो बात की अच्छी राय, ये अल्लाह का वास्ते जितने लोग मौजूद है उनसे मैं आपका गुजारिश करता हूँ, जो मैं को राय दिया उससे करना होती है, हमारे दिमाग का चले नहीं चले तो आपको बोलेंगे वो ऐसा करना बोला आपने, ऐसा गैर अच्छा था, ऐसा होते या तो कर लेते, इस तरह करना वाला है। जो मशवरे में तय होता है उसके अंदर अल्लाह की मदद होती है। जो भी मशवरे में तय करें उसके लिए हम सर झुका के जो फैसला होगा उसके मुताबिक हम जो दिन मुकर्रर होता है उस दिन एहतजाजी जुलूस में बड़े पैमाने बड़ी तादाद में हम लोग शामिल होंगे। हमारा रायपुर के इतनी बड़ी तादाद के लोग इस बिल के खिलाफ नाराज है, ये हम सुप्रीम कोर्ट को भेजना है, कोर्ट ऑफ व्यूअर के जरिए, और ये हमारा न्यूज देख के तालुका वाले होते हैं, अलग अलग जिले वाले होते हैं, तो सारे हिंदुस्तान के ऐसे इसी तरह से लोग वोट दे आए जो मुसलमान नहीं चाहते बिल को, जब सुप्रीम कोर्ट के नारे पर पेपर के जरिए तक उनको मालूम होना चाहिए बस इसके लिए क्या राय हमारी क्या करना है, सब इसी के लिए मशवरा दिए, इसी के लिए दो बात हो जिसको भी बात करके इसी भगवान से बोलिए, दो बात लंबी चौड़ी कानून कैसा बना, पीछे क्या होगा सबको मालूम है, रोज मीडिया में देख रहे हैं, सब ये कर रहे। आज का जो मीटिंग है, हम वोट के बिल के खिलाफ में एक आप लोगों से राय मशवरा करने के लिए यहाँ पर एक मीटिंग बुलाया गया था। जैसा कि बशीर भाई बोले, बहुत से लोग आना था यहाँ पर, लेकिन अफसोस नहीं आए, कोई बात नहीं, आगे ज़्यादा से ज़्यादा अभी भी हमारे फारूक भाई हुए थोड़े लोगों को एजुकेटेड करना चाहिए, जिसकी वो भगवत के बिल के बारे में जानकारी है, अपने अपने एरिया में मस्जिदों में गुरुद्वारा में इसको उनको जानकारी देना और ऊपर के बिल के जो सीरियसनेस है, जो हमारे खिलाफ जो जुल्म सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार 2014 से अब तक मुसलमानों पे जुल्म जो करते आ रहे हैं, उसके बारे में हमारे नौजवानों को, हमारे बिरादरी में सब लोगों को जानकारी देना जरूरी है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, हम बशीर भाई हम एक दो दिन पहले एक मीटिंग कर रहे थे छोटा सा, लेकिन थोड़े लोगों को जानकारी नहीं है, अच्छे पैमाने में बड़े पैमाने में ऐसा जुलूस रायचूर में करेंगे जो दिल्ली तक हमारी रायचूर की आवाज़ सुनना, वैसा एक जुलूस करने की तैयारी करेंगे। तो हर महीना आज आप लोगों को आपके राय मशवरे सभी मसलक के आलिम दीन, उलमाए दीन, सब लोगों को मशाइखीन को यहाँ पर बिठाए। ये सियासत से ज़्यादा आप लोगों का एक डायरेक्शन पे आप लोगों के जो बताए रास्ते पर आगे चलेंगे, और सियासती जो कुछ भी हमारे से बशीर भाई है, हम हैं, हमारे यहाँ असलम भाई बड़े करीब है, रजा साहब है, ऐसे हमारे सियासत में कौन कौन सामने है, पीछे से इस आगे जो हमारा वक्फ का जो खिलाफत में जो हम स्ट्राइक करते, ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के डायरेक्शन पे चलते मौलाना बोले, ये बिल्कुल सही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो गाइड करता, उसी के हिसाब से हम इस मुहिम को आगे ले जाना है, जो स्ट्राइक कर रहे उनके डायरेक्शन पे कर रहे, और आगे आने वाले दिनों में भी
जो उनका डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन के हिसाब से स्ट्राइक करेगा। कोई भी किसी के अंदर मनमानी करने की जरूरत नहीं है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ये बहुत लंबा चलने वाला है, ये एक दिन का स्ट्राइक कर खत्म करेगा। हम जाकर गलत बयानबाजी करना, गलत नारे देना, नौजवान बच्चों को हम लोग बड़े लोग समझाना पड़ेगा। ये एक जगह एक होना नहीं, एक बोले तो हमारे बच्चों को तकलीफ ना, हमारे बच्चों को तकलीफ है तो हमारे तकलीफ से करो आगे आगे दिन। इसीलिए बहुत सोच समझ कर बड़े लोगों के हम लोग सबकी जवाबदारी है, सब मिलकर क्या किस तरीके से इस मुहिम को आगे ले जाना। ये एक बार का स्ट्रेच नहीं है, बहुत आगे आने दिन में 1 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना सकता, साल भी सकता। इसको लगातार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल जो बोर्ड जो हमारे को डायरेक्शन देगा सारे हिंदुस्तान के अंदर, गांव में, तालुका में, जिला में जिस जगह स्ट्राइक करने को बोलते हैं उनके डायरेक्शन से आगे हम स्ट्राइक करते जाएंगे। और खास और एक बात यह है, हम इस जो हमारे वक्फ के विरुद्ध मुखालिफत में हम स्ट्राइक को लेकर जा रहे हैं, इसके अंदर जो कुछ भी सियासती सपोर्ट होना हमारे कम्युनिटी का एक मसला है, हमारे इदारों का, हमारे खानकाहों का, दरगाह का, मस्जिद का, हर एक चीज का हम उसको बचाने का काम हमारे ऊपर, हमारी जवाबदारी है। इसीलिए इसके अंदर ये स्ट्राइक 3 महीने चलेंगे, 2 महीने चलेंगे, 6 महीने चलेंगे, 7 चलेंगे। इसके अंदर हम सभी हमारे बड़े भाई सियासत में कोई भी हर किसी भी पार्टी रहते, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस, जिसमें भी रहते, ये पार्टी किसी समान नहीं, इसको ये खौफ का मसला है। हम सब मिलकर इस मुहिम में शामिल होकर हमारे आवाम के साथ हम पीछे रहकर इसको साथ देने का काम करेंगे और भरपूर तरीके से हम सपोर्ट करेंगे, आवाम के साथ हम रहेंगे हमेशा। और एक बार ये जो रूट मैप की जो बात बोला जा रहा है, एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, उसके ऊपर आप लोग कोई भी राय देना है तो मैंने उसका, लेकिन मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। सराफा बाजार जाने मस्जिद से जो हमारा जुलूस निकलता है हमेशा की तरह, हम इससे पहले कभी भी जुलूस निकाले तो हमारे कम्युनिटी के खाओं के जुलूस निकले तो सराफा बाजार जाने मस्जिद से जुलूस निकलकर सीधा 3 म्यूनसिपालिटी टीपू सुल्तान गार्डन से होते हुए, और हमारा टीपू सुल्तान का जो गार्डन का बैठने के लिए हमारे को जगह भी है, एक बहुत बड़ा है, एक 2000-3000 आदमी लोगों को बैठने का एक ये है। ये किसलिए बोल रहा हूँ तो बुजुर्ग लोग रहते हैं, धूप बहुत तेजी का धूप है, बहुत लंबा चले तो अम्बेडकर थोड़े लोग अम्बेडकर सर्कल को जाना, वहाँ से फिर हम नीचे ऐसा होता है, लेकिन तकलीफ होता, वो बड़े लोग बुजुर्ग लोग आते हमारे साथ में, बहुत तकलीफ होता। इसीलिए मैं सबको, बड़े लोगों को, मेरे भाइयों को, दोस्तों को गुजारिश कर रहा हूँ, ये सराफा बाजार जामे से निकलेंगे और म्यूनसिपालिटी से टीपू सुल्तान गार्डन पे होते हुए वो लोगों को थोड़ा टीपू सुल्तान गार्डन में बैठने के लिए इंतजाम हमारा हर तरीके से हमें कूलर वगैरह सब कर इंतजाम, अच्छा इंतजाम कर उनको बैठने का, पानी का, सब हर तरीके से इंतजाम कर वहाँ पर हम किसी भी हालत में हम सियासती दबाव डालकर डीसी को वहाँ पर बुलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग इतना रखिए, हम क्या करना करेंगे इंशाल्लाह। इसीलिए इसको तुम कभी भी रहते ये स्ट्राइक को, ये जो हमारा चल रहा है, इसको अग्रेसिव लेकर बोल के नको सोचो, अग्रेसिव नको सोचो। ये बहुत एक अमन से, शांति से जाना है, स्ट्राइक को आगे तक बहुत लंबा चलने वाला है, आगे तक जाना है। इसीलिए सोच समझ कर बहुत ही ठंडे दिमाग से इसको हम आगे ले जाना है। इसीलिए मैं मेरा रूट मैप बोल रहा हूँ, और इसके अंदर ये मुहिम को चलाने के लिए पूरे लोग साहिब में समझ एक आगे जरूरत नहीं। जो आज के उन्मान पे बैठे हैं हम, वो उन्मान पे ये उन्मान पे ये बात करें 2 मिनट 2 सेकंड बस कार्य करने का अल्लाह और ऐसे फैसले चौकी थे जिससे हम जो है एक पूरा अमल तरीके से एक अपना उसकी बात ये है कि मुस्लिम मसला को एक अहम बोर्ड है जिसमें सारी जमातें हर मसलक के लोग उसमें शामिल हैं। तो गुजारिश ये है कि हम उसी के बैनर करें, हम ये एहतजाज करें तो मुनासिब है, कोई और तो बोलना। अलबत्ता मुहिम को कोई नाम
प्रॉपर्टी जो तहरीर आई है इसको अगर पढ़ लेंगे पढ़ लेता हूँ कोई और पढ़ वो कानून में ये 8 का है, देखिए 8 अप्रैल का वो कानून में मुसलमान तर्जुमान का आलिया मुझे अपना वोटी वक्त बचाओ मूवी 10 अप्रैल का 7 जुलाई 2025 मरकजी हुकूमत की जानिब से वक्त कानून में मनमानी और खिलाफ दस्तूर को खिलाफ शरीयत तरमीमात करके हुकूमत वक्त के इंतजाम को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। नीज इन तरमीमात के जरिए मुस्लिम औकात को हड़पने और दबाव बर्बाद करने का घिनौना मनसूबा तरतीब किया है। ये तरमीमात न सिर्फ इम्तियाज और तफरीक पर मबनी है बल्कि दस्तूर हिंद के बुनियादी हुकूक 25, 14 और 26 से भी मुतसादिम है और इन्हें मुस्लिम अफसरों ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और इसके खिलाफ वक्त बचाओ के नाम से कुलती तहरीक आंदोलन का आगाज किया है। इस तहरीक का पहला मरहला 10 अप्रैल से शुरू होकर 7 जुलाई 2025 को अख्ताम पजीर होगा। पहले मरहले में किए गए काम और उनके नतीजे का जायजा लेकर अगले मरहले का ऐलान किया जाएगा। दूसरे मरहले में मजीद इस्तेमाल किया जा सकते हैं। ये पूरी तहरीक पुरअमन दस्तूरी हुकूक और कानून के दायरे में होगी। इस तहरीक में गार्जियन वतन और सिविल सोसाइटी के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। ये बहुत अहम है। ये तहरीक शाबान तहरीक 1985 की तरफ पर चलेगी, जिसके तहत हम हर रियासत, जिले, शहर और गाँव तक पहुँचेंगे। क्या इस तहरीक की कामयाबी इसे पुरअमन और मुस्तकिल मिजाज के साथ मुसलसल चलाने में है, ताकि एक तरफ बीजेपी और शरपसंद अनाजी की जानिब से मुतनाज़ा वक्त तरमीमात की हिमायत से जो बेबुनियाद, लघु और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसका प्रतिवाद हो सके, बिरादरान वतन के दिलो दिमाग से शुकूक और शुबहात को दूर किया जा सके, मुसलमानों को इन मुतनाज़ा तरमीमात की शबाहतों और कवासतों से वाकिफ करा जा सके। इस मुहिम के जरिए एनडीए हुकूमत पर इतना दबाव बनाया जा सके कि वही मुतनाज़ा तरमीमात को वापस लेकर साबिक़ा कानून को बहाल कर दे। मुहिम के मुताबिक मुसलमानों को इन मुतनाज़ा तरमीमात की शबाहतों फिरका परस्तों के मकरूह अज़ाइम और इरादों से वाकिफ कराना। नंबर 2, बिरादरान वतन के जहनों से हुकूमत और शरपसंद अनासी के गुमराहकुन प्रोपेगेंडा के नतीजे में पैदा होने वाली गलतफहमियों को दूर करना। नंबर 3, दीगर मजहबी इकाइयों को बाखबर करना। एक अगला नंबर आपके औकाती इख्तिलाफ का हो सकता है। लिहाजा मिलजुल कर मुस्लिमों के जरिए किए गए एहतियात की हिफाजत की जाए। मुल्क के दस्तूर के साथ खिलवाड़ और मजहबी इकाइयों को हर बुनियादी हुकूक को पामाल करने की साजिश को अदालत के जरिए रोकना। नंबर 5, मज़कूरा वाला इक़दामात और मीडिया के मस्बत और इजाबी इस्तेमाल के जरिए राय आम की सख्त तरतीब करना कि वो इस मकरूह और नापाक साजिश के खिलाफ खड़े हों। नंबर 6, इन तमाम कोशिशों और इक़दामात के जरिए मुल्क में एक ऐसी अवामी तहरीक खड़ी करना कि हुकूमत इन जालिमाना तरमीमात को वापस लेने पर मजबूर हो जाए। मुहिम का रोड मैप तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ का कारनामा, मुतनाज़ा कानून की शबाहतों इससे अहम को वापस कराने और इस्तेमाल बढ़ाने का बेदार करने की मदद से तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कानून निकाला जाएगा। इसका आगाज़ तेजी से होगा। इसका पहला इजलास इंशाअल्लाह तेजी से तालकोट स्टेडियम में 22 फरवरी को होगा और इंशाअल्लाह इसके साथ तेजी से रामलीला मैदान 7 जुलाई को होगा। इस कार्यक्रम में नजराना बोर्ड, अहम सीनियर मिली तंजीमों के रहनुमा और बिरादरान वतन की अहम शख्सियत शामिल होंगी। जिस शहर से दावा गुजरेगा वहाँ एक जलसे नाम का इस्तेमाल किया जाएगा। बिरादरान वतन के लिए हदायतें नसीहतें रखी जाएंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल होगा। नंबर 2, रियासती कौमत पुरअमन धर्मों का इस्तेमाल। हालात को नजर रखकर रियासत की राजधानी या किसी बड़े शहर में किसी मुनासिब मुकाम पर रियासती सतह की मुस्लिम सियासत धर्मों की तहरीक हफ्ते तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ 11 अप्रैल बरोज़ जुमा से 18 अप्रैल बरोज़ जुमा तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ हफ्ता मनाया जाएगा, जिसके तहत मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम दी जाएंगी, जैसे जुमा की नमाज से कबल मसाजिद में खिताबात, कॉमन मीटिंग, किसी मुनासिब मुकाम पर ह्यूमन ट्रेन का इनेकाद, बिरादरान वतन के साथ राउंड टेबल मीटिंग का एहतमाम। जिन रियासतों में हालात साज़गार न हो वहाँ सड़कों पर रायलियाँ वगैरह निकाल के परेड किया जाए। बस्ती गुल तहरीक 30 अप्रैल को रात 9 बजे तमाम लोगों से अपील की जाती है कि आधे घंटे के लिए बतौर एहतजाज अपने घर, फैक्ट्री और ऑफिस की लाइट बंद कर दिया करें और अपना कानून एहतजाज दर्ज कराएं। नंबर 5, जिले के पेपर भरनों का एहतमाम। हर रियासत के अहम जिले हेडक्वार्टर पर ये चर्चा किए गए हालत को पुराना हो एहतजाजों का एहतमाम किया जाएगा। किन हफ्तों में भरना चाहिए फैसला रियासत की कन्वीनर करेंगे। इन धर्मों के बाद जमहूरिया पार्टियों के तौर से मामला भेजा जाएगा। तो ये सारी चीजों में हमारे बिरादरान वतन के साथ राइट टेबल
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल, खवातीन के जरिए मुहिम, दूसरे मजहबी अवकाश तस्लीम के साथ नजीक रामलीला मैदान देखने में प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, ये सारी चीजें तो अहम हिदायत जो है इसके लिए है कि कोशिश की जाए कि को करने के बाद इस तरह उनकी गति चलाई गई थी, उन्हीं को पर एक बार बता दिया करते हुए हर जगह महिला बता इसका प्रोग्राम किए जाए। जी आगे का वक्त की जो तरमीम, वक्त जो अमेंडमेंट की बिल की वो दोनों ऐवानों में पास होकर सदर जमहूरिया हिंद की मंजूरी मिलने के बाद अब वो कानून बन चुका है। 5 अप्रैल से वो एक्ट है, कानून है, और उस कानून पर अमल करने के लिए हिंदुस्तान का हर शहरी पाबंद है। अब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बाकी है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में बहुत से बड़े बड़े अहम हिंदुस्तान के दानिशवरों ने पिटीशन फाइल किए हुए हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से, जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, MIM की तरफ से, और भी बहुत से पर्सनल कैपेसिटी में भी पिटीशन फाइल हुए हैं। रायपुर से भी अगर शहरिया ने रायपुर से 5 आदमी एक नुमाइंदा बनकर, क्योंकि PIL के लिए 5 आदमी जरूरी हैं, ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ದಲಿತರನ್ನ ವಿರೋಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಕಾಯ್ದೆಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ये एक्ट को रिपील यानी रिजेक्ट करने के लिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना है। इसके लिए 3 सुझाव है। पहली बात तो जो है ना, हमारी पूरी उम्मत को हम एजुकेट करना है, मस्जिद के जरिए एजुकेट करना है, खानकाहों के जरिए और दरगाहों के जरिए हर एक मुसलमान भाई को जो है ना ये बिल के बारे में बताना है, ये बिल से क्या नुकसान हो रहा है बताना है। क्योंकि आज मीटिंग में बहुत सारे कम आए, कई वो तो ये एजुकेशन कम होने की वजह से बहुत सारे हमारे नौजवान गलत फहमी में हैं, उनकी गलत फहमी भी दूर करना है। तो पहला काम हमें क्या करना है, एजुकेट करना है। एजुकेट कैसे करना है, मस्जिदों से, दरगाहों से, खानकाहों से, और जो हमें यूथ यहाँ पे बैठे हैं जिसको भी ये कानून के बारे में मालूम है, उन्होंने जो है ना अपने मोहल्ले में अपने बिजनेस पार्टनर्स, अपने रिलेटिव से कॉर्नर मीटिंग करके एजुकेट करना है। ये पहला सुझाव। दूसरा सुझाव क्या है बोले तो हमें पूरे उम्मा एक ऑर्गेनाइज होना है। तीसरा सुझाव, प्रेशर गवर्नमेंट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना है तो हमारे को पहले पिटीशन का तो तय हो गया, इंशाल्लाह पिटीशन डालेंगे। अगर पैसों की अगर और भी जरूरत है तो पूरी रायपुर की आवाम चंदा करके हम लोग पैसे देके पिटीशन करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरा जो है स्ट्रीट एजुकेशन करना। स्ट्रीट एजुकेशन पहले मरहले में हम लोग पीसफुली डेमोक्रेटिक वे में करेंगे। जो रमीयत अभी फारूक साहब ने बताया, शराब बाजार से रैली निकालते हुए जाकिर हुसैन चौक से लेकर टीपू सुल्तान और वहाँ से लेके अम्बेडकर सर्कल हम लोग पहुँचना है। वहाँ पे हमारा एक धरना होना है और उसके बाद वहाँ से प्रोटेस्ट एंड। और जब उसके बाद नेक्स्ट मसला ये होना है कि जो भी नेशनल लेवल की जगह है, जैसे कि नेशनल हाईवेज हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए या रेलवे है, अगले मसले की मैं बात कर रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेशर डालना है तो रेलवेज के पास प्रोटेस्ट करना होगा और हमारे नेशनल हाईवेज पे प्रोटेस्ट करना होगा, एयरपोर्ट पे प्रोटेस्ट करना होगा, तभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेशर में आएगी और इंशाल्लाह ये वक्फ बिल रिजेक्ट होगी। यही मेरा सुझाव है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अभी तक जो भी अपने अपने ख्यालात जाहिर हुए, अल्हम्दुलिल्लाह सभी ने भी अपने कौम की इज्जत की बरकरार के ख्यालात जाहिर किए। मैं इतना कहता हूँ कि अभी कुछ मिनट पहले शाला भाई बोले कि 11 लोगों की या 9 लोगों की जो कमेटी बना रहे हैं, क्योंकि हर एक तो अपने अपने ख्यालात जाहिर करते हैं। फाइनली जो आप एक कमेटी बना रहे हैं वो कमेटी के ख्यालात फाइनल कर दिए, इंशाल्लाह उसके तहत हम लोग सब चलेंगे। बस इतना मैं अपने बोलते तो अल्हम्दुलिल्लाह।
मेरा एक राय है, जुम्मा के दिन करने से बेहतर है किसी अदर वर्किंग डेज पे मॉर्निंग 11 o'clock को करो। ये बहती नदी में हम कपड़े धोने का काम करने की जरूरत नहीं। लोग हम क्या समझते, जुम्मा की नमाज होती, मौलाना अनाउंस करते, लोग आ जाते हैं। ऐसा है तो क्या भी नहीं होता। मिनिमम एक 2-3 घंटे आप बैठते बोल के डिसाइड कर ले क्या, ये जुम्मे के बाद नहीं होने का। मेरा राय है, आप जो भी डिसीजन लेते हो मैं साथ रहता। दूसरा है, अच्छे प्ले कार्ड्स बनाओ, 100-200 प्ले कार्ड्स बनाओ। वो प्ले कार्ड्स में अच्छे स्लोगन रखो, जिससे कोई लॉ एंड ऑर्डर को इफेक्ट नहीं होना। वैसे स्लोगन्स कन्नड़ा में, इंग्लिश में, उर्दू में, तीनों लैंग्वेज में लिखो। और उसके बाद जब प्रोसेशन चलता, एक टीम बनाओ, 50 लोगों की, प्रोसेशन को मैनेज करें। बीच में कहीं भी ट्रैफिक को डिस्टर्बेंस नहीं होना, हमारे प्रोसेशन को दूसरों से इफेक्ट नहीं होना। क्योंकि जामिया मस्जिद से हम जब निकल रहे तो थोड़ा लंबा प्रोसेशन होता, तो हम डिसिप्लिन भी रख लेना। इसलिए हमारा वॉलेंटियर के 50 जनों को टीम करो। वो टीम को आप जिम्मेदारी दो क्या करना बोल के। क्या होता है, यूजुअली हम जब प्रोसेशन जाते हैं तो हर आदमी आगे आना चाहता है, प्रोसेशन से पास जाना चाहते हर आदमी, तो उसको कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। वो एक आप ये कर सकते हैं। और जो टीपू सुल्तान गार्डन में जब हम ये होंगे, वहाँ मिनिमम 1-2 घंटे आप लोग बैठने को टाइम निकाल के आओ। और हम ऐसा अनाउंस करने से आते बोल के हम ज़्यादा भरोसा न को। अभी कोई बोले कि हमें अवेयरनेस लाना, तो आज से जो भी डेट डिसाइड होता है वो डेट तक कंटिन्यूस हम मोहल्ले में अवेयरनेस ला के लोगों को जिम्मेदारी दे के वहाँ पे शामिल होने के लिए उनसे अपील करना। ऐसा कुछ सक्सेस करने के लिए एक कंटिन्यूस प्रोसेस करें तो हम इंशाअल्लाह बहुत बड़े पैमाने में कर सकते हैं। क्योंकि 1 लाख पॉपुलेशन रेशियो में 10,000 लोग रैली में आने कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ठीक से हम लोगों को पहुंचे तो वो कोशिश करेंगे। मैं भी आपके साथ हूँ। आप जो भी डिसीजन लें मैं आपके साथ रहूँगा, साथ ही रहूँगा इंशाअल्लाह।